Hello students, welcome to my channel Easy Physics by JS. So, in the fluid mechanics, we are going to discuss IIT JEE means previous year questions, and here we are going to discuss 2019 questions. Okay. So, in this video, the first question is from 8th April morning. Okay. What is written here? Water from a pipe is coming at a rate of 100 liters per minute. Okay. If the radius of pipe is 5 centimeter, the Reynolds number for the flow is the is of the order of. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? दो चीजें दी हुई हैं, रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है और उस पाइप का रेडियस दिया हुआ है, तो उससे आपको Reynolds नंबर का ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और क्या दिया हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर 1 मिली पास्कल सेकंड दिया हुआ है। ओके एवरीवन, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमें रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, कई टर्म्स में इसको कहते हैं। तो क्यू की वैल्यू दी गई है हमको 100 लीटर पर मिनट। ओके, अब हमको 100 लीटर पर मिनट में ये एग्जैक्ट दिया हुआ है, लेकिन हमको जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है? मीटर क्यूब पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं 1 लीटर को। ठीक है, सॉरी 100 लीटर लिखा हुआ है, तो 1 लीटर में कितना होता है? 10 टू पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब। तो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 10 टू पावर ऑफ -3, एंड हियर इन द डिनोमिनेटर you have to multiply by 60. Then what you get, if you solve it correctly, you get this 0 and this 0 is going to cancel out. So you get 5 by 3 into 10 to power of -3 meter cube per second. Okay, this is the flow rate. Okay, now one more thing in the Reynolds formula. Okay, what is the Reynolds number formula? Re is equal to, okay, density of the water, velocity, diameter of the pipe upon coefficient of viscosity of the liquid, it will be the water simply. So in this case, okay, you know this density, you know this value, okay, you know this value, you know diameter, but you don't know the velocity. So what is the first step? The first step is to find out the velocity. Okay, so as you know that velocity of water is nothing but, here we have to use the formula V is equal to Q by A. Okay, what is the Q? Q is given here only, so it be a 5 by 3 into 10 to power of -3. And what is the A? A is pi r square, and here the r is 5 centimeter. Okay, so you have to convert it into the meter also. Okay, so what we have to write down? Area is pi, r is nothing but 5 into 10 to power of -2 whole square. Okay, this value you get it out. Okay, this is the simply V. Okay, so if you can simplify here, okay, let me simplify. So wait a minute, 5. Okay, so how we can simplify? 5 things are 15. Okay, 5 things are 15. So 1 5 is going to cancel out. Okay, let me write down completely, otherwise you are going to confuse. This is 3. Okay, and here you can say 10 to power of 3, 10 to power of 4. So you get a 10 simply. Why? See here, 10 to power of 3 here and 10 to power of 4 here comes minus. Okay, when it comes up in the case of numerator, you get a simply 10. Okay, so 50. Okay, multiplied by 5, multiplied by 5. Okay, into 5 into 5. 5 into 5 is simply 25. Okay, this value you get it out. Okay, now 5 5 are 25, 5 2 in the 10. Okay, and 3 and pi. 3 and pi is nothing but, you can simply say it be a 10. So it comes to be a 2 by 10, and from here you get a 0.2 meter per second is the velocity. Okay, now we are going to put all the values here in this
formula and we get a Reynolds number. Okay, so Reynolds number Re is nothing but density is 10 to power of 3, okay, and velocity is 0.2, okay, and diameter, okay, d is nothing but you have to 5, okay, 5 multiplied by 2 is 10 into 10 to power of minus 2, okay, so 5 into 10 into minus 2, okay, upon, okay, here it be in the milli, okay, so you have to write down 10 to power of minus 3, okay, 10 to power of minus 3, okay. So 10 to power of minus 3. So what you have to do, 5 2 in the 10. It comes to be simply 1. Okay. Simply 1. Wait a minute. 5. Where you are getting the 5? No, no. Here you have to get 5 multiplied by 2. Here you have to write down 10. Otherwise there is wrong. Because you have to put the diameter. Okay. I put the radius. Okay. Now, this is a 10 to power of minus 3. And here it be a 10 to power of minus 2. Okay. So what you get here, 2 into 10 to power of 3. Okay, you get 2 into 10 to power of 3. But 10 to power of minus 3 and 10 to power of minus 2. You simply get one more 10. Okay, so here you get 2 into 10 to power of 4. Okay, so it is asking for the order. So you have to check only 10 to power of 4. Okay, 10 to power of 4. So if you check it out, this option number 2 is correct. So in this question, you have to learn two things important. How to convert liter into the meter cube. Okay. Next, you have to learn this formula also. Then you have to solve the question, because here units are also important. Here the unit is simply milli. Okay. So convert it into the Pascal directly into 10 to the power of minus 3. Okay, everyone. Next question. So the next question is from the 9th April evening session, and this is, I think, very good question. So we everyone try to concentrate here. In this question, it is written a wooden block. There is a wooden block floating in a bucket of water has 4 by 5 of its volume submerged. Means the volume submerged is 4 by 5 of, if the volume is V, and 4 by 5 into V. Okay. When certain amount of an oil poured into the bucket, it is found that block is just under the oil surface with half of its volume underwater and half in oil. Okay, the density of oil relative to the water. Okay, so what you have to find out here, you have to use the Archimedes principle. Okay, I know many of you have confused with the Archimedes principle, so I try to explain each and every step. Okay, so from the first condition, okay, what is the first condition? First condition is saying that there is a some wooden block and there is a water. Okay, so this is the water. Okay, and there is a one wooden block. Okay, and wooden block is, it is not given, it is a cube or something like that. Okay, so I am simply considering this is a wooden block. Wait a minute, let this is the wooden block, and it is saying that 4 by 5 of the volume. Okay, let this is the part is submerged in the water. Okay, so in this case, what we can say that the bounces force, or you can say upthrust force, is equal to weight. Okay, so what we can write down, weight is equal to upthrust. Okay, weight equal to upthrust. If we can say mass of this block is mb, okay, mass of block is mb. Okay, so mb into, and here let this density is rho of water, rho of water. Then we can write down weight of this block is equal to upthrust force, and upthrust force is nothing but 4 by 3 into volume. Okay, 4 by 3 into volume into rho of water into g. कैसे किया है, जो वॉल्यूम इमर्स्ड है इसके अंदर उसको लिखा है, और जो डेंसिटी लिखी है वो वाटर की लिखी है इनटू जी लिखा हुआ है। क्लियर है? अब हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, अगर
जी और जी कैंसिल हो जाएगा, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, एम बी बाई बी इक्वल टू, ओके, 4/3 जो, ओके। अब अगर ये देखो, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है और मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक अपॉन ये जो वी था वो क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 4/3 डेंसिटी ऑफ द वाटर। इस बात को आपको यहाँ से कंक्लूड करते हुए आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हो, ठीक है। एक बात यहाँ से आपको कंक्लूड हो गई कि जो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक है वो कितना है, 4/3 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर है। अब देखिए सेकंड कंडीशन जो है उसकी तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि जब हमने इसमें ऑयल डाल दिया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ऑयल भी डाल दिया है। तो थोड़ा सा ऑयल दूसरे कलर का बनाते हैं, पहले वाटर बनाते हैं, ठीक है। ये वाटर है, ठीक है, और ऑयल है कुछ ग्रीन कलर का, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जब हमने इसमें ऑयल मिला दिया है तब वो क्या हुआ, जो ये ब्लॉक था, ठीक है, ब्लॉक जो था वो आधा वॉल्यूम तो ऑयल में है और आधा कितना है, वाटर में है। कितना है, आधा वॉल्यूम वाटर में है और आधा वॉल्यूम ऑयल में है, ठीक है। तो लेट द डेंसिटी ऑफ दिस ऑयल इज जो ओ, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगेन हम क्या लिखेंगे, यही वाली वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। चलिए ठीक है, लिखते हैं। वेट क्या होगा इसका, वेट तो हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है, एम ऑफ ब्लॉक इनटू जी इक्वल टू, अब अपथ्रस्ट किसके किसकी वजह से लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, एक अपथ्रस्ट लगेगा ऑयल की वजह से और दूसरा अपथ्रस्ट लगेगा वाटर की वजह से, ठीक है। तो पहले ऑयल वाला लिखते हैं, V/2, V/2 क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा हाफ है ऑयल में, रो ऑफ O इनटू जी प्लस V/2, रो ऑफ क्या, वाटर इनटू। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए एम बी, ठीक है, एम बी क्या है, एम बी क्या है, मास ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक को जी और जी पहले कैंसिल कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको कुछ चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है। अब मास ऑफ ब्लॉक को क्या लिख सकते हैं, मास जो होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ठीक है। वॉल्यूम तो वी होगा इसका, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इन द टर्म्स ऑफ, हमने इसमें निकाला था वाटर के टर्म में, लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी की रिक्वायरमेंट है हमें, 4/3 ऑफ जो इक्वल टू V/2 रो ऑफ ऑयल प्लस V/2 रो ऑफ, ओके। नाउ क्या हुआ, V/2 और V/2 कैंसिल हो गया, ओके। अब आप इसको इधर रख लो, एक साइड ले आओ, ठीक है। रो ऑफ ऑयल बाई 2 सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ हम नया नहीं करने जा रहे हैं, इक्वल टू 4 बाई, हियर यू गेट अ, वेट अ मिनट, ओके ओके, यहाँ पर 4/5 था, ओके, 4/5, इसको चेक करो बेटा एवरीवन, इट इज नथिंग बट अ 4/5। तो 4/5 लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर भी 4/5 होगा, इसको थोड़ा सा चेक करके सही करिए। नाउ व्हाट यू गेट, 4/5, ओके, माइनस 1/2, 4/5 माइनस 1/2, ओके। अब इसको जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4/5 माइनस 1/2 इंटू जो डब्ल्यू को आप बाहर ले लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो बाई 2 इक्वल टू, नीचे आया यहाँ पर 10 और यहाँ पर आया 8 माइनस 5, ओके, 8 माइनस 5 जो, ठीक है। तो इसे सिंपलीफाई करते हैं, कितना आएगा, 3/2, तो 2 फाइंड द 10, ओके। तो कितना आया, जो नॉट इज नथिंग बट, यू कैन से 3 बाई, ये अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा इरेजर कर लगाते हैं, ओके, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। 3/, इंटू जो ऑफ डब्ल्यू, ओके। अब इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, क्या पूछा गया है, जो नॉट अपॉन जो डब्ल्यू इज नथिंग बट, इट इज 0. ओके, ये पूछा गया था डेंसिटी ऑफ ऑयल
to that of water. Density of oil to that of water is 0.6. So again यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो रहा है. ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. दो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करना है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, बस आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, in this question it is written a cubical block of side 0.5 meter floats on water with 30% of its volume underwater. ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 13% दिया हुआ है, वहां पर कुछ फ्रैक्शन में दिया था, ठीक है, अंडर वाटर. What is the maximum weight that can be put on the block without fully submerged it under the water? ठीक है, अब क्या हुआ है बताता हूं मैं. ऐसा करके क्यूबिकल वाटर था, ठीक है, उसमें एक क्यूबिकल ब्लॉक फ्लोट कर रहा था. ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रहा था. क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पर. क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल अच्छा सा दिखे थोड़ा सा आपको. ये रहा क्यूबिकल ब्लॉक. ओके बच्चों, अब इसका जो है 30%, ठीक है, जो टोटल का है 30% जो है वो फ्लोट कर रहा है. अब हमसे पूछा गया है कि इस पे हम कितना वेट रख दें. ठीक है, कितना वेट रख दें, यहाँ पर कितना वेट रख दें, ये डब्ल्यू कितना रख दें. ठीक है, वेट नहीं मास पूछा गया है. अच्छा, मास पूछा गया है, ठीक है, वेट निकाल कर उसमें जी कर देंगे. ठीक है, तो कितना मास हम यहाँ रख दें, मास एम लिख देते हैं. ये मास हम कितना रख दें कि क्या होने लगे, फुल्ली सबमर्ज्ड हो जाए. ओके, जो ब्लॉक है वो फुल्ली सबमर्ज्ड हो जाए. तो देखिए क्या करते हैं. अब जब पहला इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं. इनिशियल कंडीशन ये कह रही है कि 30% जो है वो हमारा वाटर में. तो इस कंडीशन के हिसाब से आप क्या लिखोगे, वेट, वेट ऑफ द ब्लॉक, सिंपली वेट जो हमने पहले बताया, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. ओके, जब वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट लिखोगे, देन व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, मास ऑफ द क्यूब. एमसी जो लिखा है वो मास ऑफ द क्यूब है, इनटू जी. ठीक है, इक्वल टू मास ऑफ द, इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम. ओके, यहाँ पर देखो हमको वॉल्यूम ये दिया हुआ है साइड. ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम हुआ है 0.5 क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है तो इसका वॉल्यूम ये होगा, इनटू 30%. 30% मींस 30/100. ओके, इनटू क्या, डेंसिटी. ये तो अभी तक वॉल्यूम ही निकला था. ठीक है, क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है, ये 30% उसका अंदर क्या हुआ है, इनटू 10⁻³ इनटू जी. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, व्हाट यू गेट, आई कैन राइट डाउन हियर 0.5 क्यूब. ओके, 0.3 into 10⁻³ into g. Okay, this is the equation number 1. Okay, now क्या कर रहा है, उस पे कितना हम मास सकते हैं कि वो कंप्लीटली हो जाए. ठीक है, मान लीजिए हमने उस पे मास रखा स्मॉल m, तो आप क्या लिखोगे, तब वेट क्या हो जाएगा, जब इस पे स्मॉल m रख दिया जाएगा तो सेकंड वाले कंडीशंस में इसका वेट क्या हो जाएगा. इसको इक्वेशन 1 रखा हुआ है. ठीक है, मास ऑफ द क्यूब प्लस एक्सटर्नल मास इनटू जी. ठीक है, इक्वल टू, अब कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जा रहा है. ठीक है, तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड मतलब 0.5 क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम, इनटू 10⁻³ इनटू. ओके, दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन नंबर. ओके, अब क्या पूछा गया है कि m की वैल्यू बताओ. ठीक है, m की वैल्यू बताओ, इसको भी mcg लिख देते हैं. अब अगर आपको m की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. सिंपली आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है. ओके, तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करोगे तो mcg और mcg तो कैंसिल हो जाएगा, देन यू गेट अ mg इक्वल टू. ओके, 0.5 और 0.5 दोनों जगह है और g भी दोनों जगह है, तो इसको क्या कॉमन ले लो, और 10⁻³ भी दोनों जगह है. तो ये तीनों चीजें आप कॉमन ले लो. क्या क्या कॉमन लेने को कहा सर ने, 0.53, 0.5 क्यूब, ओके, इनटू 10⁻³ इनटू g, ये कॉमन हो गया. यहाँ पर अगर ये कॉमन ले लिया तो ये 1 बचा, 1 माइनस, ओके, 0.3. ओके, नाउ
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो ये आएगा 0.125, ओके 0.125, जी को जी से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको सिंपली मास की जरूरत है, ओके, तो 0.125 आएगा। आई कैन राइट डाउन वन मोर लाइन 0.125, ओके, इनटू कितना आना चाहिए 10 टू पावर ऑफ 3, ओके, इनटू यहाँ से कितना आना चाहिए 0.7, 0.7, इसका मतलब कितना आना चाहिए 125 इंटू 0.7, ओके। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 87, सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 87.5 kg, ओके, so if you can match it you get this option number 2 is correct for this question, okay everyone। so यहाँ पर भी आपको क्या यूज करना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अच्छे से समझ के यूज करना है, ओके everyone। चलिए, so if you like my channel please like it and subscribe it, thank you everyone।